ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. ધોરણ 5 એસાઇનમેન્ટ છે બરાબર. પરીક્ષામાં પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછાશે. જો પેલું શું છે? સહી વાક્यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए बराबर. એમાં છે 3 मार्क्स. प्रश्न 1 ब છે निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दो दो विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए જે છે 2 માર્ક્સના. પછી છે ક नीचे दी गई तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए જે છે 2 માર્ક્સના. પછી છે ડ नीचे दिए गए संकेत को पहचान कर उसका अर्थ लिखिए જે છે 1 માર્ક્સનું. प्रश्न 2 નો બ છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 5 में से किन्हीं 4 જે 8 માર્ક્સના આવશે બરાબર. પછી એમાં અ બ કંઈ નથી, ખાલી પ્રશ્ન 3 નામાં અ છે, બ છે ને ક છે. આમાં શું છે? ખાલી જગ્યા रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए એટલે કે ખાલી જગ્યા જે છે 4 માર્ક્સની. निम्नलिखित भिन्न शब्दों पर गोल कीजिए જે છે 2 માર્ક્સના. निम्नलिखित काव्य पंक्तिओ पूर्ण कीजिए જે છે 2 માર્ક્સની. ટોટલ કેટલા માર્ક્સનું પેપર છે? 40 માર્ક્સનું લખ્યું છે ને. પછી છે निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए જે છે 2 માર્ક્સના. એનો પાછો બ. આ ક્વેશ્ચન 4 જે છે એ કયો સેક્શન છે? વ્યાકરણનો સેક્શન છે બરાબર. એમાં બધું વ્યાકરણ જ આવશે. જો બમાં સમાનાર્થી છે, કમાં વિરુદ્ધાર્થી છે અને ડમાં છે શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ છે. ઈમાં શું છે? તો ઈમાં છે સબ્જીઓ કે નામ હિન્દી में लिखिए એટલે કે આપણે શાકભાજીના નામ હિન્દીની અંદર લખવાના છે. પ્રશ્ન 5 જે આવે છે એ નિબંધલક્ષી આવશે. થોડાક મોટા પ્રશ્નો આવશે જે 3 માર્ક્સના આવશે બરાબર. જો એક વિષય पर 8-10 वाक्यों में निबंध लखिए. પછી શું છે? कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए. પછી છેલ્લે છે ક निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए એટલે કે તમને પેરેગ્રાફ આપેલો હોય અથવા 2 વાક્યો આપેલા હોય એ હિન્દીમાં આપેલા હોય એનું તમારે શું કરવાનું છે? આપણી માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે એટલે કે ગુજરાતી કરવાનું છે બરાબર ને. હવે એની અંદર જો કાવ્ય 9 से 16 સુધીના પ્રશ્ન એક એક વાક્યમાં લીધેલા છે. પેલું શું છે? તો સહી વાક્ય चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. પેલું શું છે? दूध तथा पानी कहते हैं कि કાવ્યની અંદર કહે છે ને मिलो और मिलाते रहो. બીજું છે જલધારા कहते हैं कि जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो. તમારે ડાયરેક્ટ હિન્દીની નોટમાં જવાબ જ લખવાના છે. અબ કો કોઈ લખવાનો નથી. ત્રીજું છે पृथ्वी कहते हैं कि सच्ची सेवा करो. यह छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. પછી જો શું કહે છે? પાંચમું काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटपार करने लगे. छठू છે हाथियों का सरदार बोला हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं. सातमું છે हम अपनी गलती मानते हुए आपसे माफ़ी मांगते हैं. आठमું છે मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे बड़ी बदबू आई. अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो. दीपक कहता है कि अंधेरा हरते रहो. बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान संत बना तथा महान संत हुआ. हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं. પછી પ્રશ્ન 1 નો બો આવ્યો. જો रिक्त स्थान એટલે કે ખાલી જગ્યા બરાબર. पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को नींद आ गई. गाजर का रंग लाल होता है. विनम्र होकर रहने की सीख पेड़ की डाली देती है. स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख मछली देती है. तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो चांद. खरगोशों के बिल कहाँ है? तो सरोवर के किनारे. चांद के भांजे कौन थे? खरगोश. शकरकंद स्वाद में कैसा होता है? तो मीठा अथवा खाली जगह होता है तो मीठा. सकरिયું કેવું હોય? મીઠું હોય ને. हमेशा हंसते रहने की सीख फूल देता है. चलो प्रश्न 1 નો ક શું કહે છે? नीचे दी गई तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए. જો પહેલી તસવીરમાં કોણ છે? અમિતાભ બચ્ચન. બીજામાં છે લતા મંગેશકર. આવું ચિત્ર દેખાય તો એ કોણ હોઈ શકે? સરોજિની નાયડુ. ચોથું છે ધીરુભાઈ અંબાણી. પાંચમું કોણ છે? સોરી, ધીરુભાઈ અંબાણી નથી, ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે બરાબર. ધીરુભાઈ અંબાણી નથી પણ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ.
પછી પાંચમું છે અબ્દુલ કલામ, છઠ્ઠું છે કલ્પના ચાવલા, સાતમી છે સુનિતા વિલિયમ્સ, આઠમાં છે સાયના નેહવાલ, નવમાં છે સચિન તેંડુલકર. બરાબર, બધાના ફેસ જોઈ લો. આવું ચિત્ર તમને દેખાય તો પરીક્ષામાં લખતા આવડવું જોઈએ. પ્રશ્ન 1નો ડ શું સૂચવે છે? નીચે દિए गए સંકેતો કો પહેચાન કર ઉનકા અર્થ લીખીએ. બરાબર, તો પેલું છે સ્ટોપ, એટલે આનો મતલબ થાય હિન્દીમાં ઠહેરીએ. ઠહેરીએનું ગુજરાતી થાય ઊભા રહો. આવું જો ચિત્ર હોય તો સંકરા સેતુ, હિન્દીમાં શું કહેવાય? સંકરા સેતુ કહેવાય, જેનું ગુજરાતી થાય સાંકડો પુલ. ત્રીજું છે વૃત્તાકાર રાસ્તા, એટલે રસ્તો કેવો છે? ગોળાકાર છે. આગે રાસ્તા सकरा है, જો આ જે છે ને એ શું કહે છે? આગળ જે રસ્તો છે એ કેવો છે? સાંકડો છે, એટલે ચલાવનારાને ખબર પડે કે ગાડી કઈ રીતના ચલાવવી. આમાં છે પ્રવેશ નિષેધ, એટલે કે અહીંયા પ્રવેશ બંધ છે. દોનો તરફ રાસ્તા બંધ, બંને બાજુ રસ્તો કેવો છે? બંધ છે. સિર્ફ સાયકલ કે લીએ, આવું ગોળ વર્તુળ દેખાય ને અંદર સાયકલ દેખાય તો માત્ર ને માત્ર અહીંથી સાયકલ જઈ શકશે. સાયકલ નિષેધ, એટલે કે સાયકલ અહીંયા જશે નહીં. પડી ગઈ બધાને ખબર? સરસ. ચલો પ્રશ્ન જો પછી પ્રશ્ન 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 5 में से किन्हीं 4 पाठ 9 में शू है? कचूमर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचूमर में जो यहाँ लख्यू मिर्च, टमाटर, गाजर, बीट, प्याज. आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? तो चाट, चिप्स, टिकिया. जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम? तो कि प्याज, आलू, गाजर, मूली. बेलों पर होने वाली सब्जियों का नाम? तो कि ककड़ी, करेला, तुराई, लौकी, परवल. पछी मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? तो स्वाद और सुगंध मिलते हैं. पाठ 11 शू कहे छे? लड़के की माँ ने असरफ या सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी? तो लड़के की माँ ने असरफ या सदरी के अस्तर में सी दी थी क्योंकि किसी को पता न चले. पछी लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? क्योंकि लड़का झूठ नहीं बोला, उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी. त्रीजू छे डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? तो डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता. पछी छे डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने सीखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और लूटमार नहीं करना चाहिए. पछी छे पाठ 12 पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो पानी का उपयोग हम पीने में, नहाने में, रसोई में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं. पछी बीजू शू छे? लोग पानी का अवयव कैसे करते हैं? तो एनो जवाब आवशे कि पानी का अवयव इस प्रकार करते हैं. पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं. पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं और टपकते नल को बदलते नहीं है. तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तो खबर ज छे बधाने. बराबर, शू थयुं तू? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ. खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धन की बड़ी मात्रा लहलहाने लगे. बराबर. पछी शू लख्युं छे? पानी का अवयव कैसे रोका जा सकता है? तो कि पानी का अवयव न हो इस हेतु में मैं जलाशयों पर सूचना लिखूंगा, टपकते नल बंद कराऊंगा. पीने शू कहे छे कि पानी का पछी पीने योग्य पानी को ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करूँगा. पानी का अवयव बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा. पछी आव्यो पाठ 13 अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया? अजय की माँ ने मोहल्ले में सफाई न होने का यह कारण बताया कि जगह जगह कूड़ेदान होते हुए भी लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते. वे कूड़े को सड़क पर या इधर उधर फेंक देते हैं. गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है. पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ. मैं हर रोज़ हमारा पायखाना और स्नान घर साफ करता हूँ. कभी कभी समूह में हम गांव की भी सफाई करते हैं. अच्छे स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए?
તો શું કરવું જોઈએ આપણે? तो जो रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित दांतुन ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए, खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए और उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए। कूड़ादान कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। बराबर ने? પછી પાઠ 15મો છે, કયો છે? खरगोश का सरदार क्या बोला? खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा था? तो हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा था। પછી જો सभी सभी सब्जियाँ, आया जवाब छे आलू के बिना अधूरी है। खाली जगह ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। तो शकरकंद, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। पछी पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो, क्या कहे छे? पृथ्वी से शू सीखवानुं कहे छे? तो पृथ्वी से सीखो प्राणों की सच्ची सेवा करना। दुमदुवा गांव में हमेशा, जो यहाँ छठ्ठानो जवाब रह्यो, पानी की कमी रहती थी। बच्चे पानी में शू करवाना इच्छता था? तैरने चाहते पर कहाँ। एक बड़ा सा खाली जगह क्यों न खोदे? तो गड्ढा। अजय की दादी बीमार थी, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं। नन्हे नन्हे हम न समझो, हम भारत की शान है। पछी फैला यह आसमान है। सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। जंगल में हाथियों का झुंड आया। खरगोश ने नरम मिट्टी में अपने घर बनाए हैं। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, 3 अक्षर का मेरा नाम, पछी सिर के ऊपर मेरा स्थान, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। बराबर। पछी प्रश्न 3 ब, निम्नलिखित भिन्न शब्द पर गोल कीजिए। तो जो सेम હોય ને એમાં ગોળ નથી કરવાનું, બરાબર। બીજો અલગ પડતો હોય ને, નીર, નીર એટલે પાણી, જલ અને પાણી, તો જાલ અલગ પડે છે, તો આમ ગોળ કરવાનો છે, બરાબર। પછી બીજામાં શું છે? તો કે કમાન, અભાવ, કમી અને ઘાટા, તો શું અલગ પડે છે? કમાન। ત્રીજામાં છે મૂલી, બેંગન, આમ, આલુ, તો શું અલગ પડે છે? આમ। આમ એટલે કેરી, બાકીની બધી સબ્જીઓના નામ છે। બસ ચોથું છે રતાલુ, સેબ, લોકી, પાલક, બરાબર ને? તો શું અલગ પડે છે ચોથાની અંદર? રતાલુ, સેબ, લોકી, પાલક, તો સેબ એટલે સફરજન અલગ પડે છે। પપીતા, સેમ, કરેલા, પ્યાજ, તો શું અલગ પડે છે? પપીતા। लहसुन, कद्दू, अदरक, मिर्च, तो कद्दू।